they are very repetitive. And there are certain assumptions behind them. There's an unnecessary branding. I was telling Professor Arun that if you give a message, they will kill the messenger. They're really taking the argument and understanding what's going to happen. Where are you going? They will start putting you in a brand, in a khacha. So that's the metropolis of India at the moment. It's creative, more imitative. So I will divide the discussion in 4 parts. In the first section, I will talk about what is knowledge. And by the way, by English and Hindi are equally poor, so I can switch over to any language you want. I have no issue. So what is politics of knowledge? That is my first part. Second part, what are the responses to the politics of knowledge or to the issue of decolonization? And third, then I will talk about Shruti, scope of creative theory, colloquium. That is something that we have been organizing since the last 12 years. That's in a way our struggle in the academy to think afresh. And deliberately we have kept it outside the university system. It is organized at IAC, no funding, we don't have any account. It's all sponsored by, food is sponsored by somebody, and the space is sponsored by somebody else. That's the only thing we needed. But that's a very vibrant group. And I was so happy to see last year, around 600 people got registered. We got panicked, we started sending messages, don't come. There's no space. Yet around 200, 250 people came, and it was impossible to manage. That was really heartening. It was really, it seems that people are interested in growing and thinking afresh. And I think we are passing through a phase of new enlightenment. By the way, the Sambodhi, I really like the word Sambodhi. It means complete enlightenment, is it? And I think we are struggling for that, and I call it, we are actually struggling for what is called cognitive freedom. Our cognitive freedom is in danger. So I will try to build a theoretical perspective called creative theory perspective on the issue of decolonization. And then I will talk about some examples. How do we decolonize? What should be done? What colonialism has done to our knowledge system? And how do we continue to get out of it? So the first thing first, that is, what is politics of knowledge? I think what has happened during the colonial period has created a distinction between being, thinking, and doing. Somebody asked in the morning why India has not produced great intellectuals in the last 70 years. It has, no doubt. But nobody likes to survive for centuries. I guess. I'm not predicting. लेकिन है ये दिक्कत क्यों है इस पे बहुत डिबेट भी हुआ है एक एडवर्ड सेल्स की बहुत अच्छी किताब है ऑन इंडियन इंटेलेक्चुअल्स बिटवीन ट्रेडिशन एंड मॉडर्निटी और फिर पॉवर्टी ऑफ थियरी ये सब डिबेट पिछले कॉलेज में बहुत लोग कर रहे थे तो उसमें ये बात समझ में आती है कि हमारा जो बीइंग है हम उसे थियराइज नहीं करते उसको सब्जेक्ट ऑफ इंक्वायरी नहीं बनाते उसके बारे में सोचते नहीं हैं और जो कुछ हम सोचते हैं उसके बारे में जो भी सोचते हैं उसको नॉलेज नहीं मानते हैं सो नॉलेज ऐसा लगता है कुछ गिवन है ऑलरेडी क्रिएटेड कंस्ट्रक्टेड जिसके बारे में ज्ञान प्राप्त करना है वो ज्ञान वहाँ किताबों से प्राप्त करना है किताबों को रट लेना है जान लेना है और किताबों में ऐसा माना जा रहा है कि सारा ज्ञान अंग्रेजी
हिंदी में क्रिएट किया जा रहा है। हजारिक द्विवेदी की बड़ी अच्छी किताब है, नामदास का पोथा, नहीं पढ़े तो आप जरूर पढ़ें। उसको देखिए कि एक लड़का आया यूनिवर्सिटी से रिसर्च करने के लिए और उससे फिलोसफी ऑफ लाइफ पे रिसर्च करना था और मुझसे वो क्वेश्चनर निकाला झोले से और सवाल पूछना शुरू किया और हमारे जब अंग्रेजी बोल रहा था इसी तरह से मैंने उसको जवाब दिया और जैसे ही क्वेश्चनर पूरा हुआ उसको समझ में आ गया कि उसको मेरी जिंदगी का फिलोसफी समझ में आ गया। तो ये हमारा सोशल साइंस भी हो गया। तो ये जो बीइंग, थिंकिंग एंड नोइंग के बीच में डिस्टेंस है, इसके चलते हम लोग कोई बहुत नया सवाल भी नहीं उठा, हमारा सवाल भी उठाना हो गया। इस पर और भी मैं बात कर सकता हूँ कि इसके चलते क्या हो रहा है कि जो रिसर्च टॉपिक्स भी हम ढूंढते हैं, रिसर्च टॉपिक पूछते हैं अपने गाइड से किस पे रिसर्च करें और फिर गाइड बताते हैं इस पर रिसर्च करें। JPS वगैरह एक प्रोफेसर थे दिल्ली यूनिवर्सिटी में, उनसे किसी ने आगे पूछा कि किस पे रिसर्च करें, तो उसने कहा फिर रात में नींद आई थी ठीक से, बोला आई थी कल, बोला कल भी, परसों, बोला परसों भी, तो क्यों रिसर्च करना चाहते हो, क्या परेशानी है, घर चल जाओ आराम से रोज सो। तो ये जब हमारा बीइंग ही क्वेश्चन हम नहीं करते हैं, हमारा बीइंग क्या है, क्या हमारा एक्सपीरियंस है, कैसे हम जी रहे हैं, उससे क्या समस्याएं क्या, उसको थ्योराइज करने की कोशिश नहीं करेंगे तो कोई ओरिजिनल थ्योरी की हम वर्कआउट भी नहीं करेंगे। तो कोलोनियलिज्म ने ये किया कि हमें कह दिया कि नॉलेज है, आपको बस प्राप्त कर लेना है और प्राप्त करने के लिए आप BHU आए तो अच्छा है, JNU जाए तो और अच्छा है, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स चलाए तो और भी अच्छा है, हार्वर्ड चलाए तो और भी अच्छा है। तो हम लोग उसी पथगामी बन गए और फिर हमारा अपना सवाल खो गया। तो एक तो ये हुआ, दूसरा ये हुआ कि जो नॉलेज का एक कैनलाइजेशन हुआ, मापदंड हुआ, नॉलेज कहते किसको है, मुझे इसलिए हमारे बीइंग के बारे में कितना भी बात नहीं, क्योंकि नॉलेज का एक एपिस्टेमोलॉजी क्रिएट किया गया कि एपिस्टेमोलॉजी और ऑन्टोलॉजी कोई बहुत डिफिकल्ट वर्ड नहीं, इसे ढूंढना नहीं, इससे छोटे कि ज्ञान का मापदंड क्या होगा, कैसे किसी को ज्ञान समझेंगे। तो जो साइंस का फिलॉसफी बना, जो पॉजिटिविज्म जिसको कहते हैं, आपको न्यूटोनियन साइंस में फिलॉसफी था, ये कहा कि ज्ञान का मतलब ये है कि आपने रेगुलरिटी देखा, ऑब्जर्व किया, रेगुलरिटी देखा और रेगुलरिटी के आधार पर एक हाइपोथेसिस बनाया और हाइपोथेसिस को एक्सपेरिमेंट करके प्रूफ किया। ये जो प्रूफ हो गया तो वो ज्ञान है, बाकी कोई ज्ञान नहीं। अब ये एक बहुत ही रिजिड फ्रेम बना ज्ञान का। तो जैसे ही ज्ञान का ये फ्रेम बना तो सारा ज्ञान बेकार हो गया आपका जो था, क्योंकि आपने ये फॉलो किया नहीं है। तो पूरा जो कॉलोनियल वर्ल्ड था उसका जो ज्ञान था वो सब अज्ञान हो गया, उसका जो ज्ञान था वो सब सुपरस्टिशन हो गया। मैं जब फादर बनने वाला था तो आजकल तो अकेले ही शहर में जाते हैं हम लोग, दोनों लोग गए पेरेंटिंग का क्लास करने के लिए, तो डॉक्टर मुझे समझाते थे कि क्या करना है, कैसे करना है। मैंने पूछा कि हम लोग बचपन में खा के देखे बच्चों को ऐसे भी करते हैं, वैसे भी करते हैं, सब करें कि नहीं करें। तो बोला नो ग्रैंड मदर्स नुस्खा, प्लीज डोंट डू दैट। जब बाहर निकले तो पूछे डॉक्टर से कि डॉक्टर आर यू सीरियस अबाउट इट? उसने कहा नहीं, आई एम नॉट सीरियस अबाउट इट। तो वहां में यदि बोलते कि हाँ कर सकते हो तो मेरी नौकरी चल जाएगी। बाहर में मैं कह रहा हूँ कि मैं भी करती वही हूँ, कर सकते हो। ये जो डुअलिटी बनता है कि आप थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी के बड़े एक्सपर्ट हैं, आप मोस्ट अनडेमोक्रेटिक, ये कमाल का कॉन्ट्रडिक्शन है। क्यों बनता है ये कॉन्ट्रडिक्शन? क्योंकि एपिस्टेमोलॉजिकली हमने वो मान लिया है, एक फ्रेम है, वो नॉलेज हमने क्रिएट कर दिया, उससे मेरे जीवन में कोई मतलब नहीं, नॉलेज क्रिएट। और ये जो एनलाइटनमेंट का, मॉडर्निटी का जो एक चैलेंज था, उसमें पॉलिटिक्स ये हुआ कि उपनिवेशवाद ने, कॉलोनियलिज्म ने इसी एपिस्टेमोलॉजी को लाकर हमें समझाया कि ये व्हाइट मैन्स बर्डन है आपको सिविलाइज करना।
और जब तक आप उसको नहीं मानोगे तो सिविलाइज नहीं हो पाओगे, और हम उस सिविलाइजेशन मिशन पे चल पड़े। हमारे जो बुद्धिजीवी थे, कभी मैं पूछता हूँ कि हमारे जो बुद्धिजीवी थे, पर्शियन के बड़े बड़े विद्वान थे, संस्कृत के बड़े विद्वान थे, why they could not respond to them? What were their responses? था नहीं उनके पास। ये क्यों हुआ, ये एक सवाल है कि ऐसा क्यों हुआ कि इन बुद्धिजीवियों ने उसके ऊपर चिंतन नहीं किया, उस एपिस्टेमोलॉजी का काट क्या हुआ, चैलेंज क्या हुआ। बहुत बार में आके गांधी ने उससे बात की कि उस एपिस्टेमोलॉजी को कैसे चैलेंज किया जाए। तो ये एक कोलोनियलिज्म के पीरियड में ये चैलेंज आया जिसको हम लोग मैनेज नहीं कर पाए, और वो पॉलिटिक्स वहाँ से शुरू हुआ कि आपके नॉलेज को मान लिया गया सुपरस्टिशन, और यदि आपका नॉलेज ब्राह्मणिकल नॉलेज सुपरस्टिशन है तो ट्राइबल नॉलेज का क्या होगा? वहाँ तो टेक्स्ट भी नहीं है, वहाँ तो लिखा हुआ भी नहीं, वो तो ऐसे ही अनडेवलप्ड हो गया। एंथ्रोपोलॉजिस्ट है, डिसिप्लिन डेवलप किया, जिसने मान लिया कि आप यहाँ तक पहुँचे हैं, उसके पहले स्टेज में ट्राइबल था, अगले स्टेज में आप, अब उनको पढ़ा जाएगा, इसलिए ह्यूमन का सिविलाइजेशन कैसे ग्रो किया, यानी वो सबसे बॉटम में है सिविलाइजेशन के। तो ये एक तरीका निकला, और फिर और क्या हुआ उसके बाद कि जो यूनिवर्सिटीज बना हमारा, वो यूनिवर्सिटीज भी 1947 के बाद खास करके उसी नॉलेज ट्रेडिशन को मापदंड मान के चल पड़े। जो कुछ भी वहाँ था उसी को एक आदर्श मान लिया गया, और उसी की नकल को कर रहे। क्या वो डिसिप्लिन कैसे बनाया जाए, क्या हमारा सिलेबस कैसे हो। अभी सिलेबस हम लोग कैसे बनाते हैं, किसी को सिलेबस बनाने नया बोलते हैं तो पहले वो यूरोपियन सिलेबस को बनाता है, फिर उसमें से कुछ चीज उठा उठा के फिट करता है, फिर उसमें एक जो इंडिया जोड़ देता है, वो हमारा सिलेबस होता है। ठीक करते हैं वो, ठीक करते हैं। 10-12 किताबें पढ़ के 13वीं किताब नहीं देते, किताब तो वही रहता है जो आप पढ़े उसको फिर के एक और किताब। तो इसको कहते हैं अखिल बिलगामी कि हम लोग कॉग्निटिव मिमिक्री में फंसे हुए हैं। क्यों फंसे हैं इसका भी उत्तर लोग देते हैं। मैंने आशीष नंदी साहब से पूछा था एक बार कि आप इतने दिनों से बता रहे हैं कि हम लोग का कॉग्निटिव रप्चर हो गया है, टाइम वेस्ट हो गया है, और अब क्या करें? 30-35 साल से तो आप तो सुन रहे हैं, आगे क्या करेंगे? अब कुछ तो बताइए कि जाएंगे करें। तो उन्होंने कहा कॉफी पीते, उन्होंने कहा जरूर पीता हूँ, ले गए मुझे कॉफी हाउस में, ऐसी कॉफी हाउस में। फिर कहा कि डरते हैं। मैंने डर किस बात का आप लोगों को? वो टिकट नहीं मिलेगा मुझे ऐसा and he was very serious about it, and that's true. मैं आपको कम से कम 10 ऐसे बड़े प्रोफेसर का एग्जाम्पल दे सकता हूँ जिनसे मेरे इस सवाल का जवाब उन्होंने यही दिया है कि डर है। ये भारतीय बुद्धिजीवी वो डर किस बात है? अभी तो डर दूसरे तरह का है, डरते पहले की देखो। आप देखिए लखनऊ स्कूल ऑफ सोशियोलॉजी, क्या मार्वेलस काम हम लोग का। उन्होंने मुझे बताया कि हम लोग आपस में बहुत बातें करते थे, इंडियन ट्रेडिशन वगैरह वगैरह, जर्नल में नहीं लिखते क्योंकि पब्लिश नहीं होता, बुद्धिजीवी नहीं है। जब तक आप कोई ब्रिटिश जर्नल में नहीं पब्लिश कर दिया आपने तो आप कुछ है नहीं। तो आजकल तो उसको मापदंड भी कर दिया गया, क्या कहते हैं उसको, इसको ऊपर से पता नहीं है, रिफ्यूज टेक्नोलॉजी। तो ये एक बड़ा प्रॉब्लम रहा कि जो यूनिवर्सिटीज बने हमारे, उन यूनिवर्सिटीज ने भी जो फ्रीडम स्ट्रगल का हमारा एक्सपीरियंसेस था उसको भी एकोमोडेट नहीं किया। आश्चर्य की बात ये है, आपको पता है कि भारतीय विश्वविद्यालयों में आधुनिक राजनीतिक क्षेत्र की पढ़ाई कब से शुरू हुई? ये भी 80 के दशक में शुरू हुई, बहुत लेट से। और ट्रेडिशनल इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन, इंडियन क्लासिकल इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन, जो अभी भी मैंने एक पेपर इंट्रोड्यूस कर दी, इश्यूज इन क्लासिकल पॉलिटिकल इश्यूज इन क्लासिकल इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन, बहुत मुश्किल हुआ। आधे लोग यही कहते रहे कि संयोग की बात थी, मैं 2010 से इस प्रोसेस को शुरू किया था, 2014 की बात करता तो मैं ब्रांडेड हटा। तो ये यूनिवर्सिटीज ने भी क्या किया कि उसी फ्रेम के अंदर सोचना शुरू किया, और जो हमारे चिंतक थे उनको भी एकोमोडेट नहीं किया। अब देखिए जैसे कि रिलीजन पे सोशियोलॉजी में किसको पढ़ाते हैं?
लेबर एंड अब तीनों में से किसी को मल्टी रिलीजियस सोसाइटी का एक्सपीरियंस नहीं है। और मैं सोसाइटीज को तीन तरह बांटता हूँ। कुछ ऐसे सोसाइटीज हैं जहाँ रिलीजन्स आर बॉर्न। ये सारे बड़े रिलीजन्स एशिया में जन्मे हैं। सम सोसाइटीज में रिलीजन्स हैव ट्रांसमाइग्रेटेड, जैसे यूरोपियन सोसाइटी, तो धीरे धीरे यहाँ से गया है वहाँ आहिस्ता आहिस्ता। बहुत युद्ध किया है, 100 years ऑफ रिलीजियस वॉर चला और मारा लोकल जो रिलीजन्स थे उनको मारा, और बड़े रिलीजन्स ने वहाँ के स्टेट का चर्च बनाया। और तीसरा सोसाइटी का रिलीजन्स आर ट्रांसपोर्टेड। रसिया में जाप ने सारे रिलीजन्स को बुलाया, एग्जीबिशन लगाया और सबको बोला प्रेजेंटेशन दो। उसमें से ऑर्थोडॉक्स चर्च को चुना, बोला कल से तुम्हारा स्टेट ही है। ये तीन तरह की रिलीजियस सोसाइटी। तो ये मार्क्स, डुर्खाइम और वेबर किस तरह की रिलीजियस सोसाइटी के प्रोडक्ट है? दूसरे तरह की रिलीजियस सोसाइटी के प्रोडक्ट। तो उनको हिंदुस्तान में रिलीजन कहाँ से समझ में आएगा? उनके थ्योरी से हिंदुस्तान में रिलीजन को समझने की कोशिश करेंगे। मैं नहीं कह रहा हूँ कि कुछ नहीं कह रहे हैं, बहुत इम्पोर्टेंट कह रहे हैं, लेकिन पूरी बात समझ में नहीं आएगी। जो अभी पटनायक साहब कह रहे थे, समझ में नहीं आएगा कैसे उसको हैंडल करें। उसके बाद में गांधी, अंबेडकर और टैगोर का देखिए कितना रिच अंडरस्टैंडिंग उनका रिलीजन के ऊपर। अंबेडकर कहते हैं रिलीजन ऑफ रूल्स एंड रिलीजन ऑफ प्रिंसिपल। व्हाट एन एक्सीलेंट अंडरस्टैंडिंग। और अभी जो पूरा लिबरेशन थियोलॉजी है लैटिन अमेरिका में, वो पूरा लिबरेशन थियोलॉजी मुझे लगता है उससे पहले यहाँ आर्टिकुलेट हुआ है, लेकिन किसी सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट में इनके थियोरीज को नहीं पढ़ाया जाता है। ये गांधी, मार्क्स, गांधी, अंबेडकर और टैगोर का भी कोई थियरी है, ऐसा अभी तक मैंने कोई पेपर भी नहीं देखा, ना कभी मैंने सुना है कि उन्होंने पढ़ा है। जैसे फिलॉसफी डिपार्टमेंट किया था, कभी मेरी बहस हो गई थी, भुवन चंद जैन थे बड़ी फिलोसफर है, मैंने अब पूरे हिंदुस्तान में 1.5 डिपार्टमेंट में इंडियन फिलोसफी पढ़ाया। फिलोसफी डिपार्टमेंट एक बीएचयू में था और आधा जेयू में था, आधा ड्यू में था। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि वेस्ट ये मानता है कि यहाँ फिलोसफी नहीं है, रिलीजन है। अब मुझे समझ में बात नहीं आती। जैसे मैं यदि बुद्धिज्म और जैनिज्म में तो वैसे ही भगवान नहीं है, कॉन्सेप्ट ही नहीं बनता। और ये 6 फिलोसफी है, न्याय, वैशेषिक और योग, सांख्य एंड वेदांत। इन 6 फिलोसफी को पढ़ें तो उनका सूत्र क्या रहता है? इस फिलोसफी का उद्देश्य, इन पुस्तकों का उद्देश्य क्या है? कि मनुष्य के 3 तरह के तापों को दूर करना, दैहिक, दैविक और भौतिक। ये 3 तापों को दूर करना। और किसी को दूर करने के लिए वो नहीं कहते कि भगवान की पूजा करो तो दूर हो जाएगा। वो पूरा एक आर्गुमेंट देते हैं, तर्क करो, उससे समझ में बात आएगी। योग करो, मेडिटेट करो, कॉन्शसनेस को समझो, सांख्य कह रहा है, उससे बात समझ में आएगी। जो बातें होंगी उसको इंटरप्रेट करना सीखो, उससे समझ में आएगी बात। तो गॉड तो है नहीं, लेकिन पूरे यूरोप और अमेरिका में इंडियन फिलोसफी को कहाँ पढ़ाया जाता है? डिपार्टमेंट ऑफ रिलीजन्स में। ये बात मुझे आज तक समझ नहीं आई कि डिपार्टमेंट ऑफ रिलीजन में क्यों पढ़ाते हैं इसको। खैर, तो ये हमने उस यूनिवर्सिटी से वहां से ले लिया। बल्कि एक और ट्रेजेडी है, यूरोप और अमेरिका में तो हर यूनिवर्सिटी के अंदर एक डिपार्टमेंट ऑफ रिलीजन भी है, और इंडिया में कहाँ कहाँ बता दीजिए? बस, और कहीं नहीं। क्यों नहीं है? रिलीजन इतना बड़ा फंडामेंटल है, हमारी लाइफ को इतना इन्फ्लुएंस कर रहा है, क्या क्या नहीं हमारे लिए कर रहा है। इस पर दुख भी दे रहा है, सुख भी दे रहा है, दे रहा है, फिर भी हम उसका आगे नहीं करना चाहते और डरते हैं। फिर उसमें यूनिवर्सिटी में इसको रिड्यूस करने की बात करनी। मुझे कहीं आईएससी में एक सेमिनार ऑर्गेनाइज करना था, रिलीजन, स्पिरिचुअलिटी एंड कॉन्शसनेस। उन्होंने कहा सर इसमें रिलीजन हटा दीजिए, स्पिरिचुअलिटी और कॉन्शसनेस रखिए। तो समझ लिया है बात क्या बात है। तो ये एक ट्रेजेडी हमारी है कि हमने उनका फ्रेम ऑफ थिंकिंग भी ले लिया है, जो ओरिएंटलिस्ट थिंकिंग है हमारे बारे में, जो सही कहते हैं, ये अडॉप्ट करता है। और उसके अंदर हमने क्या किया फिर कि हम जितना भी हमारा नॉलेज ट्रेडिशंस था उन सबको हमने मार्जिन पे रख दिया और स्केल किया। मैं एक पजल आपको दे रहा हूँ,
असल ये है कि एक लड़की शादी करके जा रही है, उसका हस्बैंड उसका दोस्त दोनों जा रहा है, डाकू आ गए और दोनों हस्बैंड और दोस्त की गर्दन काट दी। लड़की बड़ी रिलीजियस थी, उसने देवी का आह्वान किया, देवी आई। तो हिंदी डिफिकल्ट तो नहीं है, तो देवी आई और देवी ने पूछा क्या चाहिए, ताकि दोनों की चिंता करती है। उन्होंने दोनों को जिंदा कर दिया। दिक्कत ये हुई, एक का सर दूसरे के धड़ में जोड़ दिया। अब सवाल ये है कि वो लड़की किससे शादी, किसको अपना पति मानेगी, सर वाले को या धड़ वाले को? मैं इस पर बताऊंगा क्यों मैं सवाल पूछ रहा हूँ, लेकिन आप सोच के मुझे बताइए क्या आपका आंसर है। तब तक सोचिए आप। और भी ऐसे मेरे पास बहुत सारे प्रश्न हैं। तो इन्होंने क्या किया, जितना भी हमारा ट्रेडिशंस था उन ट्रेडिशंस को मार्जिन पर रख दिया। यहाँ तक हो गया जिस समाज में 1000 साल से कोई ट्रेडिशन फ्लरिश कर रहा था, उस समाज के लोगों को आज उसका ज्ञान खत्म हो गया। यदि कॉमन सेंस को खंगालेंगे तो वो मिलेगा। वो मेरा एक पूरा प्रोजेक्ट है कलेक्टिव कॉन्शियसनेस को मैप करने का, तो वो मिल जाता है। लेकिन अमूमन आप इसे पूछेंगे कि भाई आपके यहाँ ऐसा कोई हुआ था, बोलेंगे मैं आऊँगा उस बात पे। और यही नहीं हुआ, बल्कि ये भी हुआ। पॉलिटिक्स का मेरे पास बहुत एग्जाम्पल है, बट एक एग्जाम्पल देके मैं आगे बढ़ूंगा। कार्ल यूंग का नाम आपने सुना होगा, वो भारत आए तो उन्होंने देखा कि यहाँ पे लोग कॉन्शियसनेस पे बहुत एक्सपेरिमेंट भी कर रहे हैं, बड़े सारे सिद्धांत भी हैं, क्योंकि बुद्धिज्म, जैनिज्म, ये सब मामला ही कॉन्शियसनेस का था इनका। तो उन्होंने एक लेख लिखा, कई लेख लिखा, कि जो कॉन्शियसनेस का थियरीज है इंडिया में वो बहुत रिच है। वो किताब पब्लिश, उसका नाम है यूंग इन ईस्ट। तो जो साइकोएनालिटिक कम्युनिटी था, जो कम्युनिटी जो वहाँ बना था, जो कि सर्टिफिकेट देता था कि आप साइकोएनालिस्ट हैं कि नहीं है, उसने उनसे कहा कि आप सारे आर्टिकल्स को विड्रॉ कीजिए, नहीं तो आपको इस कम्युनिटी से बाहर निकाल देगा। और फ्रॉइड उस वक्त बहुत डोमिनेंट थे। बड़ी एक फिल्म है डेंजरस मेथड, फ्रॉइड और यूंग के झगड़े का। तो उनको विड्रॉ करना पड़ा। Only after the age of 60 he dared to say that those articles were the best articles of mine. He wrote a book, a 1000-page book. It's called Red Book. And that book was not allowed to be published. It was published just 10-15 years back. And that created a lot of crisis in the psychoanalytic community. So, which means that there is an organized kind of thought process that keeps these ideas in the back layers. अब जैसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स मेरे पास हैं, मैं अभी इतना देना नहीं चाहता, सिर्फ लास्ट एक जिजेक के बारे में बताता हूँ। जिजेक कह रहे हैं कि दुनिया भर में फिलोसॉफिकल क्राइसिस है, और ये हमने सॉल्व, ह्यूमैनिटी उसको सॉल्व नहीं किया तो आने वाले टाइम में ह्यूमन बीइंग्स का सर्वाइवल मुश्किल है। एंड ऑफ टाइम के हम खड़े होंगे, किताब है एंड ऑफ टाइम। और जब वो बुद्धिज्म की बात आती है तो कहते हैं बुद्धिज्म इज नॉट गुड इनफ विदाउट एंगेजिंग विद इट प्रॉपर। इंटरेस्टिंग बात यह है साथ में कि बहुत सारे, मैं आजकल डिस्टोपियन नॉवेल पे बहुत काम करता हूँ। मुझे लगता है कि लिटरेचर से मैं समझ सकता हूँ कि आने वाले समय में क्या होने वाला है। सोशल साइंटिस्ट को बड़ी देर से पता चलता है। जितने डिस्टोपियन नॉवेल आप पढ़ेंगे उसमें आपको बुद्धिज्म का जिक्र मिल जाएगा। मिचेल वेलबैक एक फ्रेंच राइटर हैं, उनकी किताब है एटोमाइज्ड। एवरीबॉडी शुड रीड दैट स्मॉल बुक, एटोमाइज्ड। उसका प्रोटैगनिस्ट जीनोम साइंटिस्ट है और वो छोड़ के चला जाता है आखिरी में डिसिल्यूजन होके, और लोग कहते हैं वो जाके तिब्बत में बुद्धिस्ट हो गए। बट जिजेक कहते हैं जितना ही प्रभाव बुद्धिज्म का बढ़ रहा है उतना ही जिजेक कहते हैं दिस इज स्टूपिड फिलॉसफी। ये एक तरह का एरोगेंस है, एंड आई डोंट वांट टू काउंट ऑन द आइडियाज दैट हैव बीन टेकन फ्रॉम इंडिया एंड द नेम ऑफ इंडिया हैज बीन ड्रॉप्ड आउट ऑफ दैट। एन नंबर ऑफ आइडियाज आर देयर। इफ क्वेश्चंस कम आई विल रिप्लाई टू दैट। तो ये हुआ है हमारे नॉलेज ट्रेडिशन के साथ।
पॉलिटिक्स हुआ है, बहुत ज़बरदस्त पॉलिटिक्स हुआ है। हमें अपने ही नॉलेज ट्रेडिशन से काट दिया गया है और हम जो कुछ करते हैं वो हमारा अपने बारे में चिंतन नहीं है। जैसे कॉलोनियल इकोनॉमी में क्या होता है कि आपकी इकोनॉमी बहुत फ्लरिश कर सकती है लेकिन वो सपोर्ट करती है किसी और इकोनॉमी को, वैसे ही हम लोग एक तरह से इंटेलेक्चुअल कूलीज हो गए हैं जो उनके लिए काम करते हैं। जो हमारे यहाँ से पीएचडी लोग जाते हैं वहाँ पे जरा सर्वे कीजिए कहाँ जाते हैं और क्या करते हैं, आपको बहुत कम लोग मिलेंगे जो फिलोसफी और पॉलिटिकल थियरी के क्षेत्र में जाते हैं। ज़्यादातर कोई एस्टैब्लिश थियरी है जिसका एक एग्जाम्पल इंडिया होगा, उसके लिए आपको एक प्रोजेक्ट थमा दिया जाए। तो ये असिमेट्रिकल एंगेजमेंट हमारा उनके साथ है। दे डोंट टेक अस, जो गोपाल गुरु लिखते हैं, थियोरेटिकल ब्राह्मण्स एंड एम्पिरिकल शूद्रास, तो इस तरीके का हायरार्की इसमें क्रिएट किया गया। ये पॉलिटिक्स ऑफ नॉलेज है। व्हाट आर द रिस्पॉन्सेस टू दिस? एक रिस्पॉन्स है मीरा नायर का, एंड सम ऑफ माय मार्क्सिस्ट फ्रेंड्स आर फाइंडिंग दैट वेरी एक्साइटिंग। वो क्या है, उसको मैं कहता हूँ कंप्लीट रिजेक्शनिस्ट मॉडल। वो कहती है कि जो बात मैं अभी कह रहा था, ये सब बिल्कुल राइट विंग वाली बात है, इसके चलते ही राइट विंग आ गया है। और ये वो सबको एक साथ रखते हैं, आशीष नंदी को भी रखते हैं साथ में, गांधी को भी रखते हैं साथ में, और कहते हैं ये लोग स्ट्रेंज बेड फेलोज हैं। बेड फेलोज का हिंदी ट्रांसलेशन मुझे लगता है कोलोकियल फ्रेज में कहेंगे एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। दैट्स अ बेटर ट्रांसलेशन, एक थैली के चट्टे बट्टे हैं ये लोग। और ये क्या करते कभी आशीष नंदी के चलते यहाँ पे कम्युनलिज्म आ गया हिंदुस्तान में। गांधी के चलते कभी गांधी के चलते कम्युनिज्म आ गया। बड़ा आश्चर्य की बात है। मैं अभी गांधी की पुस्तक पढ़ा था, मनु गांधी डायरी, मनु गांधी डायरी। नोआखाली में घूम रहे हो अकेले, चप्पल नहीं पहनते कहते मैं महायज्ञ में हूँ, और कहते हैं रोज मनु को कहते हैं कि हम लोग किसी भी दिन मारे जा सकते हैं, और कहते हैं कि मेरा पूरा प्रयोग ये है कि क्या इंसान माँ की तरह सोच सकता है? यदि इंसान माँ की तरह सोच सकता है तो ह्यूमैनिटी बच जाएगा। आई ट्रांसलेट दैट माँ की तरह सोचने को, पॉलिटिक्स ऑफ अनकंडीशनल लव। So the man who is saying politics of unconditional love, he says he is a strange bedfellow of fascism. तो मुझे लगता है इस तरह के अप्रोच से तो कोई बात नहीं है, समझदारी भी नहीं है, ठीक है। क्योंकि उनका एक और प्रॉब्लम है, वो कहते हैं कि साइंस का मतलब टेक्नोलॉजी है, ये डिस्टिंक्शन वो नहीं करता। उनको लगता है कि सब कुछ जो है मॉडर्निटी ने सब कुछ किया है, साइंस डेवलप किया है और टेक्नोलॉजी डेवलप किया है, देयरफॉर दैट्स अ सुपीरियर सिविलाइजेशन, वी मस्ट फॉलो दैट। इट्स लाइक white man's burden to civilize us. That's what he thinks always. So he thinks all this knowledge is useless, but that leads to ultimately fascism. So I don't want to discuss much. I can keep talking about that because I've done a lot of reading of her, been following her. दूसरा है वो है आइडेंटिटी असर्शन पर्सपेक्टिव, जिसको नॉलेज से कुछ लेना देना नहीं है। वो सिर्फ कहता है कि मेरे आइडेंटिटी का सवाल है। नॉलेज को आइडेंटिटी से जोड़ना कितनी बड़ी मूर्खता हो सकती है। यदि कोई कहे कि फिजिक्स न्यूटन ने किया था, देयरफॉर इट इज ब्रिटिश आइडेंटिटी, इट्स क्वेश्चन ऑफ ब्रिटिश आइडेंटिटी। तो आप देखेंगे आजकल ये स्टेट स्पॉन्सर्ड जो इंडियन नॉलेज सिस्टम पे किताबें हैं, उसके यदि प्रेफेस को पढ़ेंगे आप, तो अमूमन उसको ये बात बार बार आपको मिलेगा कि ये आइडेंटिटी का सवाल है, ये भारत की अस्मिता का सवाल है। कोई ज्ञान किसी की अस्मिता का सवाल नहीं हो सकता, ज्ञान ह्यूमन बीइंग का सवाल है। ज्ञान को वैलिड करने की जरूरत है, ज्ञान है भी कि नहीं। ऐसा नहीं कि हर कुछ जो भारतीय संस्कृति में पाया गया सब ज्ञान ही है। ये बहुत अनइक्वल सोसाइटी रहा है, बहुत एक्सप्लॉइटेटिव सोसाइटी रहा है। उसी ज्ञान को एक्सप्लॉइटेशन के लिए यूज भी किया गया, जैसे कि न्यूटोनियन साइंस को ही कॉलोनियलिज्म ने एक्सप्लॉइटेशन के लिए यूज भी किया है। तो कोई भी ज्ञान मेरे ख्याल से आइडेंटिटी से जोड़ना उचित नहीं। तीसरा है जो नंदी वगैरह का है, इंडिजिनस नॉलेज। ये इंडिजिनस नॉलेज है और
Therefore it is very important. एक अलग बात सही है जो मैं भी कह रहा हूँ, लेकिन हर इंडिजिनस नॉलेज सही हो कोई जरूरी नहीं है. And there are so many contradictions within that. Therefore, there is a need to examine that. And out of these three, or maybe after critiquing these three, I want to argue that there could be another perspective on Indian knowledge base, or Indian knowledge system. And that I call critic theory perspective on knowledge system. What is that? The first thing, let me first argue, why do we need to engage with it? And that's my argument against Veerapananda or all of those comrades, friends who think that talking about Indian knowledge system means you are a right-wing person. And let me say this publicly, and I don't fear saying this, that I'm approaching the whole thing from a Marxist perspective. And I entirely agree with the idea of common sense. And I can support this argument more with what is called the idea of interpolation in Althusser and subjugation and subjection qualification. How every common sense has two possibilities. But I will not go into that. What I'm suggesting is that we need to engage with this idea, this Indian knowledge tradition, क्योंकि ये हमारे कॉमन सेंस को कॉन्स्टिट्यूट करता है. लोग उसके साथ सोचते हैं, यूनिवर्सिटी नहीं सोचती उसके साथ. इसलिए यूनिवर्सिटी और लोगों के बीच में कम्युनिकेशन खत्म हो गया. इसलिए हम सोचने वाले लोग मूर्ख हैं जो उसके साथ सोचते हैं. जैसे मार्क्सिस्ट दोस्तों के साथ प्रॉब्लम होता है. मैं उनके घर जाता हूँ, वो पूजा में बैठे होते हैं कई बार, तो कहते नॉट मी माई वाइफ. क्या प्रॉब्लम है? जब मेरी मार्क्सिस्ट दोस्त थे, उनको एस्थमा था. वो गए किसी योग से शिविर में, इमाम से कहा कि आप ओम ओम कहिएगा तो कोई ग्लैंड वाइब्रेट करता है, उससे आपका एस्थमा का ठीक होगा. और बड़ा संकट में पड़ गए दोस्त. अपने दोस्तों को बोला यार ये तो बड़ा प्रॉब्लम है कि एस्थमा का चक्कर है, ठीक तो हो रहा है. और माओ माओ so let's engage this idea. Engaging doesn't mean following. Engaging is examining, and ruthless examination of any idea, every idea, and see if that works or if that does not work. If it works, fine. Second thing is that why are we engaging with this? Because the world is facing a deep philosophical crisis. Very deep philosophical crisis. The Cartesian dualism and the Cartesian origin of the modern philosophy has bifurcated things. It has created several dualities. And the dualities are creating a lot of problems. We thought that war is almost, physical war is over. But now somebody is declaring that he can wipe out the civilization. And Vivek is saying that this is the result of crisis of philosophy. We have lost philosophy. And we are more losing philosophy to technology. We think technology can replace everything, including philosophy. And AI probably might do that too. But that will be the most dangerous day for the human race. So we need to have new philosophy. I think we are living in a dystopian world. And that's what I want to prove by examining the most popular bestseller books all over the world, bestseller novels all over the world. You know, most of the literature, most of the languages, when I'm trying to find out which is the bestseller book, and I pick up that and start reading, they are dystopian literature. What? 75 में कोई किताब लिखी गई थी, फेल कर गई. अभी दोबारा प्रिंट हो गई, बेस्टसेलर बन गई. A dystopian literature in France. It means we are living in a dystopian world. ये कब आता है? ये संक्रमण कब आता है? जब पुराना फिलॉसफी का क्राइसिस शुरू होता और नया फिलॉसफी इमर्ज नहीं किया. We have lost all the utopias. We are without utopia. Life without utopia is dangerous to live, difficult to live. Therefore, we have to discover a new utopia. How do we discover a new utopia? I think we need to engage with all possible philosophies in the world, not only Indian philosophies. All possible philosophies. Tribal philosophies, what a rich tradition of philosophy is there. The only problem is that for the Europeans, that it is not written tradition.
or it is not written in the way they want to claim it should have been written. Just for I'll take some time. Take for example, भिखू पालन ने कहा कि भाई इंडिया में पॉलिटिकल फिलॉसफी तो हो भी सकता है, पॉलिटिकल थियरी नहीं है। पर आप तो पहले तक पॉलिटिकल फिलॉसफी नहीं है, अब आप तो मान लीजिए फिलॉसफी है। तो मुझे एक बात बता दीजिए, यदि कोई कहता है कि ह्यूमन बीइंग्स आर थ्योरी बिल्डिंग बीइंग्स और आप कहते हो हमारे पास फिलॉसफी नहीं है, थ्योरी नहीं है, तो 5000 साल से हम लोग क्या थे? ह्यूमन बीइंग्स थे भी कि नहीं थे? And if your human beings are theory building beings that we don't have theory, it will be finished. We have nothing. ये भी हो सकता है। मैंने उनसे कहा सर ये भी हो सकता है, थ्योरी अलग तरीके से लिखा गया। मैं एग्जाम्पल देकर आगे बढ़ूंगा। युद्ध होने वाला है महाभारत का और विदुर को बुलाते हैं धृतराष्ट्र और पूछते हैं युद्ध क्यों हो रहा है? विदुर कहता है कि युद्ध इसलिए हो रहा है कि आपके कारण हो रहा है। बोला मेरे कारण हो रहा है? क्यों? मैंने क्या किया? कहा कि आपने जस्टिस नहीं किया, न्याय नहीं किया। बोला क्या न्याय क्या है? उसने सूत्र दिया कि जो चीज आप अपने लिए नहीं चाहते हो वो दूसरे के लिए मत कीजिए। इतना ही न्याय का बेसिक सूत्र है, आप समझ लीजिए। Some philosopher in the West today, Rawlsian theory of men of ignorance, right? It means human beings have been thinking about these things. They are human beings, and that's another point I want to make. Human beings are reflexive beings, and therefore the common sense can never be heteronized. We are reflexive beings. We always keep reflecting. We can't agree fully with anybody. ये human beings की capacity है. It's a unique thing that human beings, no other, I guess, I'm not anthropocentric, but I guess there is no other living being which can become conscious of its own consciousness. Animals are conscious. Everything is conscious. To become conscious of its own consciousness is amazing class. मैं पूछता हूँ जब मुझे AI के बारे में मुझे कहता है, मैं पूछता हूँ can AI meditate? बोलता no, it can't meditate. मैंने कहा तुम्हें डर मुझे नहीं लग रहा उससे। तो ये जो मेडिटेशन जो कैपेसिटी हमारी है अपने कॉन्सेप्ट वो मुझे रिफ्लेक्सिव बना और रिफ्लेक्सिविटी हमारी इतनी है कि हम n नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स को n नंबर ऑफ तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। वो हमारे पास ह्यूमन एजेंसी है और गांधी का इस मायने में मैं मानता हूँ कि कमाल के जिन्होंने हमारा पूरा विश्वास इस बात पे दिलाया कि ह्यूमन एजेंसी किसी भी कंडीशन में रहेगा just because they are human beings, they have the agency and they can decide to do anything. So therefore, I think we are reflexive being and therefore we are creative being and therefore we can create new ideas, we can always create new utopia and for that we need to engage with our own tradition and traditions of the world. Not that like identity assertion model you say only we have this tradition. सबसे पहले हमने खोजा, जरूरत नहीं है। दूसरी बात इसमें है कि क्यों एंगेज करें किसी, क्यों क्या यूटोपिया बनाए? ह्यूमन लिबरेशन, यूनिवर्सल, द प्रोजेक्ट ऑफ यूनिवर्सल ह्यूमन लिबरेशन is the project that should be the guiding principle for any negotiation between philosophies, any engagement with any tradition. If that is liberating for human beings, let us accept that. Let us engage with that. Let us adopt that, adapt that. So we are homo creativus. We are homo creativus. We are creative thinkers. We are reflective thinkers, therefore we are creative thinkers. And since we are creative thinkers, therefore we need to engage with all philosophies that human beings have created. How do they create philosophy or knowledge? They create knowledge in order to solve their problem. So they have different kinds of problems in different places. अभी यदि पानी का बहुत अभाव हो जाए हमारे देश में, हमें वैसे लोगों से सीखना पड़ेगा जिनके पास पहले से पानी नहीं था और उन्होंने तरह तरह का इंस्ट्रूमेंट डेवलप किया है पानी को बचाने का। इसमें कौन सी बड़ी बात है? Why do you connect that with the culture? Why do you want to connect that with identity? Need not to. So that is, there are more arguments why I am saying that we need to have engagement with tradition. There are 3-4 more conceptual tools, and through that I will explain what is creative theory of this. One,
knowledge space. You know, whatever is going in society, whatever churning is happening in society, there is an ontology of collective consciousness. That is there. Once the consciousness is produced, that gets into that space. Even Tagore से ले रहा हूँ. Tagore राममोहन रॉय के लिखते हैं, कहते हैं कि नदी की तरह है ज्ञान जो बहती रहती है, कभी कभी रुक जाती है, तो कोई आता है फिर उसे खोल देता है, फिर नदी बहने लगती है, तो जिसने खोला उस नदी को, उसका ज्ञान फिर तो समा जाता है. तो एक स्पेस है जो हमारे बियॉन्ड चलता है. जो कुछ भी फ्रीडम स्ट्रगल में ज्ञान बना, वो ज्ञान उस स्पेस में है. हम कभी इसको इन्वोक कर सकते हैं. वो कलेक्टिव रिसोर्स है ह्यूमैनिटी का. ह्यूमैनिटी एज अ होल का कलेक्टिव रिसोर्स है वो. दूसरी बात कहना चाहता हूँ कि एक है नॉलेज स्पेस और दूसरा है मेडिटेटिव फ्लो. ये जो रिवर खोलने की बात है, उसे मैं कहता हूँ ये मेडिटेटिव फ्लो है. हर एक टाइम में जब वो रुक जाता है तो जो सोसाइटी है वो डिबेट करता है, एंगेज करता है. और इसका पूरा एग्जाम्पल मैं आपको दे सकता हूँ 6th सेंचुरी BC से अभी तक का. मैं ज़्यादा उसको नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन आप इमेजिन कीजिए वैशाली 10 किलोमीटर रेडियस में गौतम बुद्ध भी रह रहे थे, महावीर जैन भी रह रहे थे, अजीत केस कंबल मेटेरियलिस्ट भी रह रहे थे, और पूरा डिबेट चल रहा है. और कई फिलोसफी में डिबेट हुआ जो इसके हमारे फ्रेम में भी आ रहा. अभी आके गांधी ने कहा कि आई एम अनिकालवादी. 6th सेंचुरी BC में पैदा हुआ था फिलोसफी. अभी कह रहे हैं कि अनिकालवादी है. महालनोबिस ने पहले स्टैटिस्टिक्स के ग्लोबल कॉन्फ्रेंस में, वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस में कहा, लोग कह रहे थे कौन सा फिलोसफी होगा जो स्टैटिस्टिक्स को सपोर्ट करेगा. उनका एक बड़ा अच्छा लेक्चर है, अभी सुन सकते हैं, और अनिकालवाद और स्टैटिस्टिक्स प्रोबेबिलिटी थ्योरी. तो ये सर्वाइव करते हैं. और हम मेडिटेटिव फ्लो करते हैं जब भी क्राइसिस में जाते हैं. वी गो बैक टू इट, एंगेज विद इट, create new ideas, not copy, not connecting the identity, but we create new ideas. This meditative flow happened during the freedom struggle. Look at the people 1835 to 1885. There was hardly a political leader who was not speaking on Gita. Why? They engaged with so many traditional ideas, but rebuilt that idea, reconstructed those ideas, reconstituted those ideas. So engaging with intellectual tradition does not mean that we have to copy that. We have to assert our identity. We have to reconstitute ourselves. How do we reconstitute ourselves? Term I want to use is democratic negotiation. Negotiation is the key, and it has to be democratic. One can call it radical democratic negotiation, in which you don't treat the other as inferior. All knowledge traditions should be treated equally. Colonialism ने क्या किया? उसने कहा तुम inferior हो, कमजोर हो, और एक hierarchy बना दिया. और हमने tribals को कहा तुम inferior हो. Instead of that, let us examine them, not because that is a powerful society or weak society, but let us examine them as from the perspective of knowledge. How much liberating it is. Is it liberating or not? If it is not liberating, abandon that. But if it is liberating, given by anybody in the world, we must make that part of our larger utopian thinking. And the last point in this series is we have to rethink. You know, the social science that we are doing, sorry to say this, but I am quite convinced about it. We are doing administrative social science. This social science was designed by the state to make state policies. We have to reimagine social science as transformative social science. जो कॉमन लोगों से बात करें, उनका प्रॉब्लम क्या है, सॉल्व हम कैसे करें. We are not solving their problem. We are solving our problem that we will get a job or not. That's what we are doing. Look at the people in freedom struggle. They left their jobs and they started doing theory. We left the theory struggle, get into a job and doing theory. There's a fundamental difference between the two. I think that difference, how to mitigate, is a very important part. Then only we can produce somebody of great importance today or tomorrow. That is something that transformative social science is the key word. I think we have to rethink social sciences. I know it's very difficult,
but maybe outside the purview of the university. I'll take another 5-7 minutes. Okay. Let me give you examples of some of the projects that we have been doing. One first question. This question always came to my mind. I wrote an article critiquing Professor Mahajan. Professor Mahajan was delivering a lecture on political theory, which he started with Plato. And that stuck to my mind that in a society which is 5,000 years old, why should we start from Plato? We never had any philosophy. ये क्या हो गया हम लोगों को? तो मुझे लगता है कि हमारे पास है theories होने चाहिए. For instance, I will ask a question. Can there be a strong state without a theory of state? Can you build a building without a नक्शा? बना सकते हो क्या? कुछ तो थ्योरी बनाओ उसके लिए. कमजोर थ्योरी हो, मजबूत थ्योरी. जिस सोसाइटी ने 325 BC में बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेट इमर्ज किया, पूरा एक टेक्स्ट लिखा गया मोटा सा उसके ऊपर, कौटिल्य का अर्थशास्त्र. तो बिना थ्योरी को लिख दिया गया उसको. कुछ तो थ्योरी रहा होगा उसके पीछे. And can there be theory of state without theory of power? It's not possible. So can we read this text? अभी क्या हो रहा है, हम कैसे पढ़ते हैं उस टेक्स्ट को? Within the Western framework हम उसे पढ़ते हैं a text in public administration, state class public, or at best theory of internationalism, Mandel theory बहुत बिता है. Let's re-engage with them. See what are they thinking of. एक आदमी कह रहा है कि राजा को पहले हम पढ़ाएंगे लॉजिक, पढ़ाएंगे सांख्य, उसको पढ़ाएंगे पूरा जो प्रोडक्शन प्रोसेस है वो, उसके बाद उसको राज करने के नाश्ते. फिर भी क्या है उसका कि वो कहीं अपने पावर को मिसयूज नहीं करे, उसके लिए अमात्य मंडली बनाएंगे. अमात्य मंडली में कौन होगा? उसका भाई भतीजा नहीं होगा. उसका पूरा नियम बनाएंगे अमात्य मंडली में कौन होगा. अमात्य मंडली में पूरा भरोसा नहीं है. तो एक जासूसी सिस्टम क्रिएट करेंगे ताकि चेक एंड बैलेंस हो सके. ये सारा कुछ करके एक स्टेट बनाएंगे और स्टेट का उद्देश्य क्या होगा? जनहित. कमाल है, ये पूरा थियरी कंस्ट्रक्ट हो रहा है. और उससे भी ऊपर अर्थशास्त्र के 3 पेज है जो मुझे लगता है बहुत क्रूशियल है. मैं गलत भी हो सकता हूँ बट ऐसे भी देखा जा सकता है. डिजायर के ऊपर मुझे लगता है कौटिल्य का चैलेंज ये था जो आज भी चैलेंज है. हाउ टू हेल्प पीपल इन फुलफिलिंग लेजिटिमेट डिजायर and stop them from pursuing illegitimate desire. कैसे करें? तो उसके लिए स्टेट चाहिए. फिर स्टेट के अंदर कैसे गड़बड़ हो सकता है? So he has full system, and then it covers everything in that. So maybe we can look at these things very differently, but we don't do that. Another example: Mimamsa theory of interpretation. K.R. Sarkar delivered a lecture in Oxford in 1905 on Mimamsa theory of interpretation. ये जो हर्मेटिज्म पढ़ते हैं कहाँ से निकल गया है? बाइबल से तो निकल गया है. तो हमारे यहाँ मीमांसा में एक जबरदस्त थियोरी ऑफ इंटरप्रिटेशन है. तो मैं ऐसे देख रहा था कि जो केसेस आते हैं कोर्ट में, इतने केसेस क्यों जमा हो जाते हैं. मैं लॉयर लोगों से बात कर रहा था तो पता चला मुझे, मैं गलत भी हो सकता हूँ लेकिन बहुत सारे जजेस भी इस बात को मानने लगे हैं कि जो मैक्सवेल थियोरी ऑफ इंटरप्रिटेशन है, जो मीमांसा थियोरी ऑफ इंटरप्रिटेशन है, दोनों में एक डिफरेंस है. और हमारा कॉमन सेंस जो है वो मीमांसा थियोरी ऑफ इंटरप्रिटेशन और जुडिशियरी एक्चुअल थियोरी ऑफ इंटरप्रिटेशन, तो बड़ा कॉम्पिटिशन है. हम सोचते हैं जो न्याय है वो जुडिशियरी कुछ और करके दे देता है. कैन वी रिजॉल्व दैट और नॉट? Lot of judges have used now Mimamsa theory of interpretation. Can we use that for reading the text also? These are challenges that we have. I don't have time to go in detail in this, but we can talk about it. इसी तरीके से मयांग एक जगह है, मैं वहाँ गाँव में छोटा था, असम में. उसकी पूरी कहानी में वहाँ पहुँचा कैसे, उसे जादू नगरी कहा जाता है. अभी उसमें 3-4 PhD हो चुका है. इंडिया में नहीं हुआ है, बाहर हुआ है, शिकागो में, मिशिगन में, इस जगह पे. मेरी स्टूडेंट है, उसने भी PhD किया बाहर जाके.
यहाँ मुश्किल था उसका पीएचडी करना। मैं जब गया वहाँ पे तो पता चला कि पूरे इंटरनेट पे आप देखेंगे तो उसको कहा जाता है विलेज ऑफ ब्लैक मैजिक। आप यूट्यूब पे देखेंगे तो बहुत कुछ मिलेगा उसमें। जब मैं वहाँ लोगों से बात करने लगा तो उन्होंने कहा कि सर हम लोग को तो बहुत डिह्यूमनाइज किया गया। मेरा दोस्त पुलिस ऑफिसर था, उसके साथ अकेले नहीं जाने देते, उसने बताया सारा टेस्ट तक जलाया गया, वो पीटा गया ये ब्लैक मैजिक करके। एंड दे टोल्ड मी दैट आवर्स इज व्हाइट मैजिक। आई सेड व्हाट इज व्हाइट मैजिक? उसने कहा कि ये बहुत जंगली इलाका था, बहुत सारा मेडिसिन का ज्ञान हम लोग को है, तो हम लोग मेडिसिन देते हैं। मुझे एक कपल के बारे में बताया जो अमेरिका से 18 महीना में 18 था कि उसको बच्चा नहीं हो रहा था, वो बच्चा हो गया फिर वहाँ से चला गया। मैंने पूछा क्या किया, जादू तो ना किया, रनिंग मेडिसिन था जो पता था उसको यूज किया। तो अब उस मेडिसिन को आपने ब्लैक मैजिक क्या दिया और पूरे गांव को डेमोनाइज कर दिया। पुलिस वाले जाते थे उसको पीट पाट के लोग वहां से चले आते थे। अब धीरे धीरे एक्नॉलेज किया जा रहा है, 3-4 टेक्स्ट है उन टेक्स्ट को एक्सेप्ट किया जा रहा है। तो ये जो टेक्निक्स हैं इंडियन ट्रेडिशन के, फिलोसफीज हैं, उसको हमने मार्जिन में डाला, वो पूरा पॉलिटिक्स में हमने सिस्टमेटिकली इसको बात किया। लास्ट पॉइंट आई विल मेक इन 2 मिनट्स को अब चैलेंज ये सब तो कहने से मेरे दोस्त आजिया बुरावस्ती, वो मेरा बहुत बड़ा क्रिटिक है। कहता है ये आप ऐसे ही बोलते रहते हो, कोई थियरी में निकले तो कुछ बताओ कि कुछ दूसरे बेहतर एक्सप्लेन कर सकते हैं। हाँ ये सो एक चैलेंज है, वो चैलेंज ये कि क्या नया दे सकते हैं जो बेहतर, दूसरा जो कह रहा है उससे बेहतर कर सकते हैं। बेहतर थियरी का मतलब ये है कि आपका जो थियरी है वो उन सारी चीज़ों को एक्सप्लेन कर जो दूसरा एक्सप्लेन करता है और उससे कुछ ज़्यादा एक्सप्लेन करता है। मुझे बहुत अच्छी बात लगी इंडियन थियरी जिसमें अभी काम कर रहा हूँ, वो ह्यूमन नेचर का। वेस्ट का जो थियरी ऑफ ह्यूमन नेचर है, वो थियरी ऑफ ह्यूमन नेचर यूनिटरी है, सिंगल एस्पेक्ट को लेके वो पूरे ह्यूमन बीइंग को थियराइज करता है, उसी के आधार पे सोसाइटी को थियराइज करता है, उसी के आधार पे स्टेट को थियराइज करता है। राजीव भार्गव बड़ी अच्छी किताब है मिथोलॉजिकल इंडिविजुअलिज्म, जिसमें उसने क्रिटिक किया इस बात। मैंने राजीव भार्गव से पूछा कि सर आपकी अगली किताब कहाँ है जो ये कहे कि ह्यूमन बीइंग्स आर मल्टी डायमेंशनल, बहुत कॉम्प्लेक्स? कल मैंने लिखा नहीं। मैंने क्यों नहीं लिखा? डर, सब लोग डरे हुए, पता नहीं किस बात से लोग डरे हुए थे। तो ये जो थियरी ऑफ ह्यूमन नेचर है जिसे मैं मानता हूँ वो बड़ा कॉमन सेंसिकल है। पुरुषार्थ और विकार, 4 पुरुषार्थ और 6 विकार, ये 10 एलिमेंट्स हैं। हम सब लोग जो पर्सन है, हमारा जो पर्सनहुड है, जो हमारी पर्सनालिटी है, वो कॉन्स्टिट्यूट होती है अलग अलग टाइम और स्पेस के इनके कॉन्फ़िगरेशन और रिकॉन्फ़िगरेशन। ये बहुत कॉम्प्लेक्स है क्योंकि यदि 10 हो जाए एलिमेंट्स तो 10 एलिमेंट्स का इनफिनाइट कॉम्बिनेशन कॉम्बिनेशन होता है। एंड दैट्स व्हाट वी आर। एवरीबॉडी इज सो डिफरेंट, यू कांट पुट देम टू कैटेगरीज। अब उसके बाद यदि हम चाहे सोसाइटी को थियराइज करें तो सी हाउ कॉम्प्लेक्स इट कुड बी, बट दैट डजंट मीन दैट वी शुड गिव अप द कॉम्प्लेक्सिटी। And now particularly after science is suggesting the chaos theory, I don't have time to explain that, how Newtonian epistemology is completely collapsed. It's completely collapsed now. The new epistemology suggests that we are living in a complex world. And the complexity should be theorized, should be acknowledged. मुझे लगता है कि यदि उस थियरी को हम पकड़ के दोबारा से सोशल साइंस के बारे में सोचना शुरू करें, बहुत सारी चीज़ों के बारे में हम नए तरीके से सोचते हैं। ह्यूमन पर्सनालिटी के बारे में, साइकोलॉजी के बारे में, भाव और रस के बारे में। भाव और रस हमारा ये 2 एलिमेंट है, ये 5 तो 10 तो हो गई है, 4 पुरुषार्थ और 6 विकार। मेरे पास समय नहीं उसको एक्सप्लेन करने का, बट आई कैन एक्सप्लेन दैट। ये सब ये एनालिटिकल कैटेगरीज है, ये वैल्यू कैटेगरी नहीं है। पिछले सेंचुरीज में क्या हुआ कि इसको लोगों ने वैल्यू कैटेगरी बना दिया। ये एनालिटिकल कैटेगरी, इसके थ्रू लोग एनालाइज करते थे चीज़ों। और गांधी एंथोनी पारेल ने इस बात को आर्ग्यू किया है कि गांधी कैसे इसको एनालिटिकल कैटेगरी को यूज करते थे। और उस एनालिटिकल कैटेगरी के थ्रू यदि हम थियोराइज करते हैं तो प्रॉब्ली 4 और एलिमेंट जोड़ा जा सकता है, टाइम एंड स्पेस। ये कॉन्फ़िगरेशन जो हम 25 साल के जो अलग था, जब
50 साल का हो जाएगा अलग हो जाएगा। एंड भाव एंड रस, तो 10 4 14 14 एलिमेंट्स को एक साथ मिलकर हम ह्यूमन सोसाइटी को मेंटेन करें, डिफिकल्ट है, बहुत डिफिकल्ट है। बट महाभारत क्लेम करता है कि सारे एलिमेंट्स के द्वारा जितना कुछ बन सकता है वो हमने इस टेक्स्ट में रखा है, और इसीलिए रिलीजन को सोशल साइंस की तरह पढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। Patnaik was right on this, and I'm not saying this. Gulbenkian Commission report that everybody should read only 80 pages, prepared by no other than Emmanuel Wallenstein and Ilya Prigozhin, which argues, let us accept that religion was a form of social science that we have inherited and we must engage with that. Thank you very much. थैंक यू सर। यानी लेक्चर के बाद कुछ भी बोलना मुश्किल है, लेकिन इसके प्रभाव को आना है तो एक ही मात्र साधन है संवाद करने का।